देखिए बच्चों, आज हम क्लास 10 हिंदी मीडियम लेसन 6 द न्यू प्लेयर इन द टीम, दल में एक नया खिलाड़ी, इस पाठ के बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। इसके राइटर हैं लेखक मीनाक्षी जी जैन। तो बच्चों, ये पाठ जो है एक लड़की के संघर्ष की कहानी के ऊपर एक पाठ है। क्या होता है कि ममता, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर गेम सीरियसली फ्रॉम टुडे, आई एम टेकिंग यू इन द बास्केटबॉल टीम। ममता से कुछ शब्द कहे गए कि मैं तुम्हें अपने बास्केटबॉल की जो टीम है उसमें शामिल करने जा रहा हूं। ये जो शब्द थे वो कोच के थे। These words of the basketball coach surprised everyone's selection had been going on for the school's basketball team, and the coach had chosen Mamta, who had joined the school only a month before. कोच ने जब ममता से कहा कि तुम अच्छी तरह अभ्यास करती हो, इसलिए मैंने देखा है तुम्हें खेलते हुए अच्छा खेलती हो, तो मैंने तुम्हें अपने विद्यालय की टीम में शामिल कर लिया। ये वर्ड जब ममता के लिए कोच ने कहे तो स्कूल में और भी लड़कियां थी, वो अचंभित रह गई। क्यों रह गई कि वो अभी एक महीने पहले ही उस ममता नाम की लड़की ने विद्यालय में दाखिला लिया था। ममता could not believe her ears. She wanted to play basketball since she joined the school, but none of girls in her class was ready to teach her. In fact, some of the girls in the team even laughed at her when they heard the previous school in the which she had studied did not even have a basketball court. ममता ने जब ये शब्द सुने कोच के, तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो बास्केटबॉल तो खेलना चाहती थी, लेकिन कोई भी लड़की क्लास की उससे सहमत नहीं थी। कुछ लड़कियां उस पर हंसने लगी जब उन्होंने सुना कि जहां पे पहले वो पढ़ती थी तो वहां पे बास्केटबॉल का कोई भी ख्याल नहीं था, कोर्ट नहीं था, मैदान नहीं था। Mamta had been studying in a small school in the nearby town till the time, as her parents could not afford to send her to any of the public schools in the city. It was only because of the scholarship she had won from the trust that it had been possible for her to join this reputed convent school. Being away from home in a star is young for some friends, but till now most of the girls had refused to accept a small town girls as their friend. Most of the girls in the school came from rich families. They treated her as an unwelcome guest who was too low in status was their standard. So she has never played basketball before. How can you take her in the team? Their captain Sawa complained. ममता एक छोटे से कस्बे से आई थी, एक गरीब बच्ची थी। वो विद्यालय में छात्रवृत्ति से ही पढ़ा करती थी। जिस स्कूल में वो पढ़ने के लिए आई वो बहुत ज्यादा धनी लड़कियां थी, सभी धनी परिवार से थी। इसलिए जितनी भी लड़कियां थी वो ममता से बिन बुलाए मेहमान की तरह बर्ताव करती थी, क्योंकि ममता जो थी वो हर क्षेत्र में
उनसे कम थी, लो थी, निम्न थी, चाहे वो अमीरी में हो, चाहे वो रहन सहन में हो, चाहे वो खान पान में। सभा नाम की लड़की ने ये शिकायत की कोच से कि इसने तो कभी बास्केटबॉल खेली ही नहीं है, तो तुम इसे अपने विद्यालय की टीम में कैसे ले सकते हो सर? ये जो शब्द थे वो सभा के थे, सभा नाम की लड़की के थे। Don't we mean Sabha? There is always the first time for every fun. Can't you see how good her passes are? And physically she is fitter than any of you. The physical education teacher at Mustache Sabha. Oh no! Now we can't forget all about winning the trophy in the inter-school basketball championship this year. Kemba Rima, the first captain of the team. The other girls in her group also made faces to show their displeasure. What these girls did not know was that if anyone told Mamta she could not do a certain thing, she accepted it as a challenge and never rested till she had proved them wrong. The coach had heard Rima and said, "Have you been able to win the trophy even once since you have started playing? Maybe this year you will at last win because of Mamta." सभा नाम की लड़की ने शिकायत की कि ममता को क्यों ले लिया। तब कोच ने कहा कि हर किसी के लिए हर कोई पहला काम जिंदगी में वो पहली बार ही करता है। कोई भी पैदा होकर सीख के नहीं आता। हर इंसान के लिए कोई भी कार्य पहला ही होता है। यदि पहली बार उसको चांस नहीं दिया जाए तो वो आगे कैसे बढ़ सकता है। मैंने उसके जब वो खेल रही थी, जब उसका अभ्यास ले रहा था, तो उसके मैंने अच्छे बॉल को पास करते हुए देखा है, इसलिए मैंने उसको अपनी टीम में लिया है। रीवा ने कहा कि लो अब तो हम वैसे ही मैच हार जाएंगे, कैसे जीत पाएंगे। तो कोच ने कहा कि अभी तक तुमने कौन सी छल कर ली है, अभी तक तो तुम बिल्कुल नहीं जीत पाई हो, फाइनल में भी नहीं पहुंच पाई हो सकता है इस ममता के कारण तुम सेमीफाइनल में और फाइनल में पहुंच जाओ और जीत भी जाओ, हो सकता। Mamta was touched by that remark. He silently thanked the coach for the support and made up his mind to the coach at the game that the team would feel incomplete without her. She thought of the famous words that her mother often repeated to her, "Practice make a man perfect." So she started using all her free time in practicing basketball. She was thankful that the coach was helping her in every way. She kept perfecting her passes and her techniques with her determination. Even slight remark from the teammates made her more strong. Like the time when she dropped a pass and Hema said, "Do you have the water finger that you cannot even hold the ball properly?" Or when Rima said, "Don't to try to act nice on the court, I won't get you anywhere. You have to be a fighter to play this game and always be a offensive, delicate. Girls like you have no place on the court." Little the girls realized that these remarks really got off the fingers in her. देखिए, जब कोच के ये शब्द ममता ने सुने कि उसे और आत्मविश्वास आ गया। कोच ने कहा था कि अभी तक तुम नहीं जीत पाई हो सकता है कि इस ममता के कारण तुम जीत जाओ। ये शब्द कोच के ममता के दिल को छू गए। उसने अभ्यास जारी रखा, अभ्यास करती थी, इस पर लड़कियां उस पर हंसती थी। हेमा, सवा, रीमा सभी उससे कहती थी, बार बार ताने मारती थी, कहती थी कि देखो उसके तो मक्खन जैसे हाथ हैं,
ये क्या बास्केटबॉल खेलेगी। इस प्रकार से उसे ठोंट मारती थी, स्नाट मार करती थी। लेकिन इन्हीं रिमार्कों की वजह से, इन्हीं टिप्पणी की वजह से, इन्हीं शॉट मारने से, ताने मारने की वजह से उसका विश्वास, उस लड़की का विश्वास, ममता का विश्वास और दृढ़ होता चला गया और कड़ा होता चला गया और उसने अभ्यास को जारी रखा। कुछ दिनों बाद विद्यालय में क्या होता है देखिएगा। 1 month later, the school organized the annual sport meet. The Mamta wanted to participate in the 14-meter race. She was a fast runner. She used to walk long distance in her town. That had helped her develop strong and the muscles and the good stamina. देखिए, जो विद्यालय में इंटर स्कूल बास्केटबॉल की प्रतियोगिता होने वाली थी, अंतर विद्यालय बास्केटबॉल की जो प्रतियोगिता होने वाली थी, यानी कि एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में, उससे पहले उसी विद्यालय में एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया? एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वो दौड़ प्रतियोगिता 400 मीटर की थी। कितने मीटर की थी? 400 मीटर की थी। उस दौड़ प्रतियोगिता में ममता ने भी हिस्सा लिया और उस लड़की ने भी हिस्सा लिया जो हमेशा से विजेता होती आ रही थी, बनती आ रही थी। और भी कई लड़कियां थी। सबने कहा कि इससे तो ममता जीत ही नहीं पाएगी, हमेशा से विजयी होती आ रही है, वही लड़की जीतेगी। लेकिन जब ममता ने दौड़ना आरंभ किया तो शुरू में पीछे चल रही थी। उसके मजबूत इरादों से, उसमें इतना स्टेमिना था, लगन थी, मेहनत थी। उस दौड़ते दौड़ते उस लड़की को उसने हरा दिया जो हमेशा से उस विद्यालय में दौड़ प्रतियोगिता जीतती आ रही थी। दौड़ प्रतियोगिता जीतती आ रही थी, उस लड़की को ममता ने हरा दिया। जब the previous year champion that she was two sportmen, he hanged Mamta and congratulated her. Then the Mamta received her prize. She also got a standing ovation. It had taken Mamta just a few moments on the field to become a celebrity. The race changed Mamta base in her school. She became very popular and even her classmates. देखिए, उस दौड़ से जब ममता ने उस लड़की को हराया जो हमेशा से उस विद्यालय में विजेता होती आ रही थी, तो सभी की आंखें चौंक गईं, भौं चक्की रह गईं और ममता ने प्राइज जीत लिया था। सभी ने उसको बधाई दी। इधर उस रेस के कारण ममता की विद्यालय में इमेज बदल गई। जो उसकी विशेषता थी वो बाहर आ गई। अब तो सभी जितने भी लड़कियां थीं जो उससे नफरत करती थीं, सभी ने अपना मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना उससे प्रारंभ कर दिया। अब वो एक दूसरे के दोस्त बनने लगे। किस वजह से? कि ममता ने वो दौड़ जीत ली थी, उस वजह से। अब कुछ दिनों बाद क्या होता है? फाइनली द इंटर स्कूल बास्केटबॉल कंपटीशन started in the 10 teams participating in the competition. Mamta school had never before reached the semi-finals, so this year the girls were desperate to win. Third team went to the final. Mamta had a big role in the team reaching the final. Her shot never missed a begin 5 feet 6 inches tall. She could easily passes ball. She wished to grab it easily. She was made the someone in the final. They were up against the city champion. The game finished with the equal point of the team. So both the teams got 3 shots. देखिए, अब वो दिन आ गया जिसका ममता को और विद्यालय को इंतजार था। क्या? कि अंतर विद्यालय प्रतियोगिता होने जा रही थी
एक विद्यालय का मैच दूसरे विद्यालय से होने जा रहा था, बास्केटबॉल का मैच होने जा रहा था। ममता को लिया गया था, जितनी लड़कियां थी उनको लिया गया था। एक मन में ये था कि अभी तक हम सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाए हैं। कोच का विश्वास था कि शायद ममता के कारण इस बार सेमीफाइनल में पहुंच सकें और मैच जीत सकें। तो देखिए, इन द फाइनल दे वर अप अगेंस्ट द सिटी, इन द फाइनल दे वर अप अगेंस्ट द सिटी चैंपियन। द गेम फिनिश्ड विद इक्वल पॉइंट्स बोथ ऑफ टीम। अब क्या हुआ, मैच खेलते खेलते दोनों ही टीमें बराबर पे आ गई। किस पर आ गई? बराबर पॉइंट पर आ गई। अब सो बोथ द टीम्स scored 3 shots each. The opponents were able to score only 1 shot out of 3 from her team. Mamta was chosen to hook the ball. She had to score at least 2 baskets to win. All eyes were fixed on her. She bounced the ball nervously, knowing fully when the responsibility she carried on her shoulder. Suddenly he remarked, "Himas, what's the day? She was chosen for the team. Now we can't forget all about winning the trophy in the inter-school basketball championship this year." Those words set her on fire again. This was her chance to show everyone so wrong they were. She made her shot, and it was a perfect basket. There was a loud applause from the audience. Both the teams were against equal. देखिए, जो ममता नाम की लड़की थी वो लंबी तो थी, पतली थी, 5 फीट की 6 इंच की थी। वो बॉल के पास बहुत अच्छे से कर रही थी। सभी की निगाहें उस ममता नाम की लड़की पर थी। क्यों? वो इसी साल उस टीम में शामिल हुई थी। सभी की निगाहें उस पर थी। बहुत अच्छा खेल रही थी, बॉल को पास कर रही थी और गोल को भी बचा रही थी। But could she do not again? There was defense staying silent in the field as she steps into the shot. It was as if no one even dared to breathe. Mamta bent her leg, raised the ball into the position at last, took the shot. She felt the earth stamping down her face as the ball looped through the basket and bounced off the ground. Their team had made history. They had been participating in the competition for long, but it was the first time that they had reached the final and had won it too. देखिए, उस ममता के कारण मैच अच्छा हो रहा था और जीतने के कगार पे भी पहुंच गया था। ममता के कारण सेमीफाइनल में टीम पहुंची और उसके कारण अंत में वो विजय भी प्राप्त हुई ममता की टीम को। अब सभी लोग, ममता teammate came running from all around the hugged her. Everyone was shouting the dancing at the same time. There was cheering all around. सभी लोग ममता को बधाई देने लगे, सभी ने उसको गले से लगा लिया। ये बड़ा प्रसन्नता का मौका था। क्यों था? In the nose, the heart, the Sabha say, "I will never again, precious people. I hope you can forgive me." Rima to join Sabha and the Kulai to Mamta. अब तो सभा ने, रीमा ने, सभी ने उससे माफी मांगी कि हम गलत थे, हम नहीं जानते थे कि तुम ऐसा कर सकती हो। किसी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में पहले से धारणा नहीं बनानी चाहिए कि ये अच्छा कर सकता है कि बुरा कर सकता है। ये तो उसके खेल पर ही डिपेंड रहता है कि उसने कैसा खेला है। Mamta claps there the hand and the stand. Finally, I feet as I belong here. Just then there the coach came forward to congratulate them. Mamta, you did not let me down. Thank you, he said. No, sir, I should be the thanking you had you not shown faith in me. Thank you the chosen me. I would never have even learned the game, Mamta said, weeping her tears of happiness. She had really become indispensable for the team, all because of her determination and hard work. देखिए, तभी क्या होता है, कोच, जो ममता पे उस कोच ने विश्वास दिलाया था, वो कोच आता है।
ममता को बधाई देता है। ममता झुक के प्रणाम करती है। ममता से कहता है कि ये सब तुम्हारा ही परिणाम है, तुमने इस स्कूल को विजय प्राप्त कराई है। ममता कहती है नहीं सर, रोते हुए कहती है, उसकी खुशी के आंसू आ जाते हैं उसकी आंखों में, खुशी के आंसू आ जाते हैं। कहती है नहीं सर, ये सब आपकी बदौलत हुआ है, आपके कारण हुआ है। अगर आप उस दिन मुझ में विश्वास नहीं दिलाते या विश्वास पैदा नहीं करते तो शायद आज मैं इस मुकाम पे नहीं होती और शायद आज हमारी टीम विजयी ना होती। ये आपकी ही करामात, आपकी बदौलत है। आपने मेरे अंदर वो मेरे पास देखे थे, वरना किसी को मुझ पर विश्वास नहीं। मैंने परिश्रम किया, कठिन परिश्रम किया, उस बदौलत मैं आज मुकाम पर हूं, लेकिन सहयोग आपका है सर। तो ये वर्ड थे ममता। ये पाठ बच्चों मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया है। इसके नोट्स आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिए हैं। देखिए बच्चों, ये पाठ जो है बताता है कि हमें कोई कुछ भी कहे, कोई कितना भी हमारे बारे में बुरा कहे, भला कहे, हमें उनकी बातों को नजरअंदाज कर देना है। हमें अपने काम पर, अपने उद्देश्य पर ही ध्यान लगाना है। उस ममता नाम की लड़की के साथ क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, सभी लोग उससे नफरत करते थे, बार बार पे ताने मारते थे, लेकिन उसने उनके इस तानों को बर्दाश्त करना सीखा, सहन करना सीखा। उससे झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं की। क्यों? उसे आगे बढ़ना था। उसे वो मंजिल दिखाई दे रही थी कि जहां वो पहुंचना चाहती थी। बच्चों, इसलिए भविष्य में कोई कुछ भी कहता रहे, आपको अपने उद्देश्य पे, अपने काम पर ही मन लगा के कार्य करना, अपना ध्यान पर ही मन लगाना है, कंसंट्रेशन करना है। लोग तो कहते रहते हैं, लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना, तुम्हें अपने काम पर अड़े रहना है। तो बच्चों, ये पाठ था, मैंने आपको बता दिया है। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में चर्चा होगी। चैप्टर का नाम एंगर है, एक कविता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।